So let's start with the session. In last session, we have discussed about different applications and all the concepts of trigger. In this session, we are going to discuss the code and some more concepts regarding trigger. There are two important concepts which are still pending with respect to trigger. So first of all, we will discuss these two concepts and then we will highlight the code with the use of these concepts. As you can see on the screen that there is a concept of old and new keyword in trigger. So what is that old and new keyword concept? Let's first understand that. Trigger has a very unique capability to access both old and new value of a particular column. For example, if you are making update over the column, if you are updating the value of a particular column, the trigger has a capability to access its old as well as new value because trigger has been fired with update statement. So let's understand this concept a little bit further. So let's suppose here I am issuing a statement update employee. Now during this update employee, trigger has been fired. And let's suppose in this update statement, you are changing the salary like this, salary plus 1000. So you are increasing the salary amount. Now during execution of this update statement, trigger has been fired. So trigger is actually coupled with this update statement. So this trigger has a capability to access the value of salary column. And this trigger has capability to access both old as well as new value of the column. तो क्योंकि अपडेट के बीच में ट्रिगर आया है तो ट्रिगर के पास पावर है कि इट कैन एक्सेस the value which was before update and the value which will be after update on that particular column. So we can access both old and new value of the column associated with the update, insert और delete statement. तो हम अपडेट, इंसर्ट और डिलीट के साथ जो ट्रिगर एसोसिएट कर रहे हैं उसके पास पावर है कि वो बोथ ओल्ड एज वेल एज न्यू वैल्यू एक्सेस कर सकता है. तो अब इसको समझते हैं. लेट्स सपोज एम्प्लॉय टेबल है, इसमें मैं सैलरी की बात कर रहा हूं और सैलरी लेट्स सपोज 5000 है ई नंबर 100 की, where e number equal to 100. So can anybody tell me what will be the old and new value in this case? What will be the old and new value of salary in this case? इस केस में ओल्ड और न्यू वैल्यू क्या होगी? 5000 and 6000. So 5000 and 6000. तो ओल्ड अगर यूज करेंगे तो वो 5000 देगा और अगर न्यू यूज करोगे तो वो आपको 6000 देगा. तो आपके पास दोनों वैल्यू है जिसमें आप ओल्ड और न्यू वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम की. ये तो केस हुआ अपडेट का. ना लेट्स सपोज इस अपडेट की बजाय यहाँ पे डिलीट है और आप कहते हो डिलीट एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इक्वल टू 100. तो अब आप 100 का जो ई नंबर है उसको डिलीट कर देते हैं और 100 की जो सैलरी है वो 5000 है. तो अब आप अपडेट को भूल जाइए, अब आप डिलीट को सोचिए कि मैं डिलीट स्टेटमेंट फायर कर रहा हूँ और जिसमें लिखा है डिलीट एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इक्वल टू 100 और 100 की जो सैलरी है पुरानी वो 5000 है. तो इस केस में मुझे बताओ कि अगर ट्रिगर ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी एक्सेस करेगा तो क्या आएगा? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट विल बी ओल्ड एंड व्हाट विल बी न्यू. So 5000 would be old and null would be new. यस, तो इस केस में ओल्ड वैल्यू 5000 हो जाएगी लेकिन जो न्यू वैल्यू है वो नल होगी. तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डिलीट के केस में सिर्फ ओल्ड वैल्यू एक्सेस होगी और नई वैल्यू आपको नल मिलेगी. सिमिलरली अगर आप इंसर्ट करते हैं और उसमें आप डाल देते हो कि जो रिकॉर्ड स्टोर करना है वो 100 का है और उसकी सैलरी 5000 है,
तो इंसर्ट के केस में ओल्ड वैल्यू क्या होगी, न्यू वैल्यू क्या होगी? So old null हो गया, new 5000 हो गया. यस, तो इंसर्ट के केस में ओल्ड नल होगा और न्यू 5000 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना इस केस में। तो जो अपडेट है वो दोनों आपको ओल्ड और न्यू वैल्यू देगा, जो इंसर्ट है वो सिर्फ न्यू वैल्यू देगा क्योंकि ओल्ड वैल्यू उस केस में नल होती है, और जो डिलीट है वो सिर्फ आपको ओल्ड वैल्यू देगा और न्यू वैल्यू आपको नल मिलेगी। और इसको एक्सेस करने के लिए, जो ओल्ड और न्यू वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास कीवर्ड है वो है हमारे पास ओल्ड और न्यू के साथ। तो इसको हमने इस कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। यू कैन फॉलो दिस। सो मैं स्टेटमेंट फायर कर रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू दिस वेयर ई नंबर इक्वल टू 1। तो उसकी जो पुरानी सैलरी है वो 5000 है, नई सैलरी 9000 हो जाएगी। तो अगर आप कॉलन ओल्ड डॉट सैलरी यूज करेंगे तो 5000 मिलेगा, और कॉलन न्यू डॉट सैलरी यूज करेंगे, सॉरी 90000 मिलेगा, और अदरवाइज 50000 मिलेगा। तो कॉलन ओल्ड और कॉलन न्यू ये दो कीवर्ड है, तो उस कॉलम के नेम के आगे कॉलन और कॉलन न्यू लिख के हम उसकी ओल्ड और न्यू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने अपडेट के साथ इसको यूज करके बताया है। नाउ लेट्स सपोज अगर आप इंसर्ट करते हैं, तो मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जिसमें शाम की वैल्यू मैंने ऐड की है। तो इस केस में उसकी जो न्यू वैल्यू है वो 70,000 है, लेकिन जो ओल्ड वैल्यू है सैलरी की वो नल है, क्योंकि इंसर्ट करने से पहले कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। सिमिलरली अगर हम डिलीट करते हैं, तो आप ई नंबर 3 का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो इस केस में ये ओल्ड वैल्यू होगी, वाइल न्यू वैल्यू जो है वो नल होगी। सो दिस इज द सेम पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है। और इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास है कॉलन ओल्ड और कॉलन न्यू कॉलम नेम, जिसके साथ हम जो भी वैल्यू आपने स्टेटमेंट में लिखी है उसकी उसकी वैल्यू को आप पिक कर सकते हैं, कोई भी कॉलम की वैल्यू। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स में था रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओल्ड एंड न्यू एज न्यू। तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड को हम कॉलन ओल्ड बोलते हैं और न्यू को कॉलन न्यू बोलते हैं, लेकिन इसकी बजाय आप अपना नाम भी दे सकते हैं कि ओल्ड को आप प्रीवियस भी बोल सकते हो और करंट न्यू को आप करंट भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे रेफरेंस लिखेंगे फिर, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज ऑप्शनल। तो आप कर सकते हैं रेफरेंसिंग ओल्ड एज प्रीवियस एंड न्यू एज current. So this is also possible, but commonly we don't need it. So that's why this is an optional part, and we um write most of the trigger code without changing this old and new to customize name. But yes, this syntax has a provision to give customized name for old as well as new. So we can give our own names to this. So I hope that with this discussion, आपको जो कल की सेशन में हमने इसको छोड़ा था वो आज क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है। If you have any doubt, you can ask me any question. तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि बाय डिफॉल्ट ओल्ड और न्यू है, लेकिन हम उनके अपने खुद के नाम भी दे सकते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो है ओल्ड को हम प्रीवियस नाम देना चाहते हैं और न्यू को हम लेटेस्ट नाम देना चाहते हैं, तो देन वी कैन यूज कॉलन प्रीवियस dot old name and colon latest dot old name instead of using old and new. So we can do that by using this part. So now we are able to discuss the code of triggers with some examples. So I request all of you, if you can keep your notebook and pen with you so that you can help me to write the code, because अगर आप साथ साथ कोड लिख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हम समझ पाएंगे कि किस तरह से सारा काम डिटेल में हो रहा है। तो ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन। तो इस पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब ये बोलता है कि जो भी आपने नाम इंसर्ट या अपडेट में दिया है डेटा, वो सारा अपर केस में स्टोर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंसर्ट स्टेटमेंट ये फायर कर रहे हैं या ये अपडेट स्टेटमेंट फायर कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दिस इंसर्ट और अपडेट एक ट्रिगर फायर होना चाहिए, और ये ट्रिगर क्या करेगा, इन वैल्यूज को पकड़ेगा और इनको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो वो आपका नेम हो सकता है, वो आपकी जॉब हो सकती है, और इन वैल्यूज को पकड़ेगा और उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा बिफोर एक्चुअल परफॉर्मिंग इंसर्ट और अपडेट।
तो किस टाइप का ट्रिगर लगना है, कौन बताएगा मुझे इस केस में? कौन सी टाइप का ट्रिगर होगा? कैन ऑडिबल बिफोर बिफोर रो लेवल। बिफोर रो लेवल। यस, तो इस केस में हमें बिफोर रो लेवल ट्रिगर लगाना है। और लॉजिकली अगर हम सोचें तो ट्रिगर को क्या करना होगा, ई नेम की वैल्यू को एक्सेस करना होगा और उस ई नेम की वैल्यू को पकड़ के, ये ई नेम की वैल्यू को पकड़ना होगा और उसको अपर केस में कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरह से हम इस वैल्यू को रेफर कर सकते हैं ई नेम को? इंसर्ट में जो ई नेम लिखा है आप उसको कैसे रेफर करोगे? ओल्ड ई नेम के साथ या न्यू ई नेम के साथ? ये जो राम है ये का कौन सा नेम? ओल्ड। इंसर्ट, ये इंसर्ट है यार। इंसर्ट में ओल्ड तो नल होता है इंसर्ट में, ये नई वैल्यू दे रहे हो अरे ना, न्यू है, न्यू है। सो ये इंसर्ट। न्यू है। न्यू डॉट ई नेम ही तो होगा। नई वैल्यू को तो चेंज करना है, पुराना तो नल था, नई वैल्यू ये है, नई वैल्यू ये है। और ये जो राज है, ये वाला कौन सा राज है, नेम है, ओल्ड है या न्यू है? ये जो मैं कह न्यू। रहा हूँ, हाँ तो ये भी न्यू है, तो आपको न्यू से एक्सेस करना है। सो आप सिंपल क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल एक लाइन का कोड है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, ट्रिगर के एक्शन में न्यू ई नेम के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करोगे अपर, और न्यू ई नेम को अपडेट कर दोगे। तो जो न्यू ई नेम, जो भी ये वैल्यू है, आप इसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करोगे। ये ट्रिगर में डेटा इंसर्ट होने से पहले, टेबल में डेटा इंसर्ट होने से पहले या अपडेट होने से पहले अपना काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, ये यहाँ से न्यू ई नेम की वैल्यू पिक करेगा, उसको अपर में करेगा और उसको चेंज कर देगा। यानी कि ये राम को इस राम अपर में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद एक्चुअल इंसर्ट और अपडेट परफॉर्म होगा। तो जब डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होगी तो आपको वो नेम या जो नेम है वो अपर केस में मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए बिफोर टाइप का ट्रिगर लगेगा और फॉर ईच रो हमें काम करना होगा और ये ट्रिगर इंसर्ट और अपडेट दोनों के ऊपर आपको लगाना होगा। तो नाउ वी कैन राइट द कोड। सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर बिफोर इंसर्ट और अपडेट। तो अपडेट में मैं सिर्फ ई नेम पे लगाना चाहता हूँ, तो वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द नेम ऑफ कॉलम, बट दिस इज ऑप्शनल ऑल्सो। बट इट्स बेटर कि अगर कॉलम आपको पता है तो आप सीधा उसको मेंशन कर दें, क्योंकि उसने सीधा बताया हुआ है ई नेम पे लगाना है, तो सीधा मेंशन कर देते हैं ऑन एम्प्लॉय फॉर ईच रो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। एक्सक्यूज सर। यस यस। सर जो उसमें जो पिछले वाले में सर न्यू लिखा है, अगर हम न्यू ना लिखते और खाली नेम लिखते तो वो एरर आ जाता। तो इसमें ट्रिगर में आपको जो भी कॉलम की वैल्यू है वो कॉलन न्यू या कॉलन ओल्ड से ही एक्सेस होगी। अगर सिंपल कॉलम का नाम लिखोगे तो वो आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा। सो यू कैन नॉट एक्सेस द कॉलम विदाउट यूजिंग न्यू एंड ओल्ड, तो उसके बिना सिंटैक्स एरर है। ओके। तो बिगिन, तो यहाँ हमने सीधा इसको अपर में कन्वर्ट किया एंड। तो दिस इज सो इजी। तो अदरवाइज कोड एक ही लाइन का है, तो ऊपर वाली बात ही है सिर्फ समझने वाली। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट आएगी कि आप इंसर्ट तो लोअर में करेंगे, लेकिन जब सेलेक्ट स्टार करके देखेंगे तो आपको डेटा अपर में मिलेगा। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड you will enjoy the output of trigger when you see it on in action. So मैं इंसर्ट तो इसमें करूँगा, अपडेट ऐसे करूँगा, लेकिन जब आप एक्चुअली कोड फायर करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट का तो ये इस तरह से करेगा। एक करके देखें जल्दी से, यू विल लाइक इट, अगर ओरेकल लाइव चल रहा है तो। हमारे पास सब कुछ वैसे तो लिखा ही हुआ है पीपीटी में, तो आई जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट। So we are going to execute this code. पेपर भी आ गया आपके, तो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ये मेरे पास इसका कोड है,
तो पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो टेबल क्रिएट हुआ, उसके बाद अब हम इस टेबल के ऊपर क्रिएट तो हो गया टेबल, तो अब इस टेबल क्रिएट होने के बाद मैं ट्रिगर कंपाइल कर रहा हूँ। तो टेबल बना होना चाहिए तभी ये स्टेटमेंट चलेगी। यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ट्रिगर में मैं कह रहा हूँ कि आपको एम्प्लॉय टेबल पे लगाना है। सो टेबल शुड बी क्रिएटेड, सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल। सो नाउ आई एम क्रिएटिंग ए ट्रिगर, अपर ट्रिगर। तो व्हाट इज आउटपुट, वी गॉट द आउटपुट के ट्रिगर हैज बीन क्रिएटेड। तो ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया है। तो अब इस ट्रिगर से क्या होगा, मैं इंसर्ट करूंगा ये वाली स्टेटमेंट। तो इसमें हम जॉब पे तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नेम पे ही काम कर रहे हैं। तो आप देखिए मैं राम लोअर में इंसर्ट कर रहा हूँ। सो आई एम इंसर्टिंग दिस रिकॉर्ड, सो यू विल गेट ए आउटपुट वन रो इंसर्टेड, बट द इंटरेस्टिंग विल बी select star from employee. So let's see the content. So you will see that कि जो राम है वो डेटाबेस में जब स्टोर हुआ है तो वो अपर केस में हुआ है। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू टेल कि आप अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आप यू कैन वेल अप्रिशिएट दैट कि अदरवाइज ओरेकल में हमेशा पंगा रहता था कि केस कैसे स्टोर किया है, कोई लोअर में कर सकता है, कोई अपर में कर सकता है, कोई मिक्स में कर सकता है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा एक लाइन का ट्रिगर लिख दें तो ये अब मुझे गारंटी है कि नेम जैसे मर्जी हो वो हमेशा अपर में स्टोर होगा। एंड यू कैन ऑलवेज राइट द क्वेरी इन ड्यूरिंग सर्च वियर नेम इक्वल टू राज। तो अब आपको कोई भी क्वेरी लिखनी है नेम के ऊपर तो यू नो दैट कि आपके जो नेम है वो अपर केस में स्टोर है। तो इस तरह से कुछ भी लिखने से अब आपका काम चल जाएगा। अब आपको और वो सारी कंडीशन या वहाँ पे अपर और लोअर फंक्शन यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी इन्फोर्स दैट कि ऑल द एंट्री ऑफ नेम विल बी स्टोर्ड इन अपर केस। सो सेम वे वी कैन राइट इट फॉर ऑल द करेक्टर कॉलम। आप या जॉब के लिए लिख सकते थे और जितने भी करेक्टर फील्ड हैं वो सबके लिए हम लिख सकते थे। सो यहाँ देखिए ये नेम को राज में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन राज मैंने लोअर केस में दिया है। लेकिन जब डेटाबेस में राज अपडेट होगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट ई नेम इक्वल टू राज। सो लेकिन जब ये डेटाबेस में अपडेट होगा तो ये भी अपर केस में ही जाएगा। सो जस्ट एग्जीक्यूट इट। रो अपडेट हुई और यहाँ इसी से आ जाएगा वेयर ई नेम है। तो आप देखते हैं राज भी अपर केस में आया। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन। If you have any doubt, you can ask any question. So this is very important and interesting that a single line of code can produce lot of good results. So now this is another interesting code. तो अब हम एक ट्रिगर और लिखने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। ये क्या कर रहा है कि ये कहता है कि जब भी आप ई नेम के ऊपर कुछ भी अपडेट करेंगे, जब भी आप ई नेम के ऊपर कुछ भी अपडेट करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले करेगा दोनों कि ओल्ड नेम ये था, न्यू नेम ये था। तो अपडेट की स्टेटमेंट अभी तक सिर्फ यही मैसेज देती थी कि वन रो अपडेटेड, लेकिन अब ये बोलता है कि इसके अलावा आपको ये भी मैसेज चाहिए कि आपने ये नेम जो नेम है वो राज से राम चेंज कर दिया या राम से राज चेंज कर दिया। तो जो भी आपने अपडेट किया है नेम तो वो आपको ओल्ड भी डिस्प्ले करवाए यूजर को और एज वेल एज न्यू नेम भी डिस्प्ले करवा दी। पहले ये था, अब आपने ये चेंज किया है। तो अपडेट की स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्प्लेइंग दैट वन रो अपडेटेड, इट विल डिस्प्ले मी ओल्ड एज वेल एज न्यू कंटेंट। तो अपडेट से कुछ एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूं अब मैं। तो किस टाइप का ट्रिगर लगेगा, बिफोर और आफ्टर, रो लेवल या स्टेटमेंट लेवल? आफ्टर रो लेवल। After row level. So after लगेगा रो लेवल, very good. So yes, so trigger type will be after and level will be row, that is for each row. So very good. और कोड बॉडी में क्या करेंगे हम, एक्शन में क्या लिखेंगे? एक ही लाइन का कोड होगा वो। तो एक्शन में जस्ट आपको ओल्ड और न्यू की वैल्यू डिस्प्ले करनी है एंड यू नो दैट हाउ टू एक्सेस ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। सो यू जस्ट नीड टू डिस्प्ले कॉलन ओल्ड डॉट ई नेम एंड कॉलन न्यू डॉट ई नेम। तो एक्शन में सिर्फ आपको डीबीएमएस आउटपुट में ओल्ड ई नेम और न्यू ई नेम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, क्योंकि कॉलन ओल्ड ई नेम आपको बता देगा पुराना नाम क्या था और न्यू ई नेम बता देगा कि नया नाम आपने क्या दिया है, और इसी से काम हो जाएगा। तो कोड देखते हैं।
ये एम्प्लॉय अपडेट का ट्रिगर है, ये फॉर आफ्टर अपडेट चलेगा ई नेम के ऊपर, ये फॉर ईच रो चलेगा बिगिन, एंड वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग ओल्ड एंड न्यू नेम. So this is only one line of code. Just execute it, and then you will see that कि update की कितनी statement powerful हो गई है. So it is very interesting to see trigger in action. तो मैं क्या करता हूँ, ये कोड यहाँ लिख दिया, ये टेबल तो बनाया हुआ है एम्प्लॉय हमने, तो जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. तो ये एक और ट्रिगर हमने, कुछ एरर आया क्या? So we encountered this create employee after. So yes, trigger created. तो ये ट्रिगर हमारा बन गया है, और अब हमें अपडेट करके देखना है, और जब भी मैं अब अपडेट करूंगा मुझे ओल्ड और न्यू वैल्यू दोनों डिस्प्ले करनी चाहिए उसको. तो यही अपडेट की स्टेटमेंट चलाते हैं. तो अपडेट ई नेम इक्वल टू दिस, नाम चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द इफेक्ट. तो अब ये कर दिया, इसको रन करते हैं. तो यू कैन सी, सो दिस इज इंटरेस्टिंग. सो मैंने लिखी अपडेट स्टेटमेंट, आप देखिए हमने एग्जीक्यूट अपडेट ही की है, लेकिन इस अपडेट की जो आउटपुट है वो क्या है, वन रो अपडेटेड, और साथ में वो बता रहा है ओल्ड नेम एंड न्यू ई नेम. Old name, new name. हाँ, तो वो ओल्ड भी बता रहा है, न्यू भी बता रहा है. तो अपडेट हमारी अब पावरफुल होगी, मतलब जब अपडेट करोगे तो रोज के साथ साथ ये भी बताएगा कि क्या चेंज किया आपने. एंड आई कैन डू दिस फॉर एवरी कॉलम एंड एवरीथिंग. So this is quite interesting, and you can see that just by writing one line of code, we can add some customized functionality to my statement. So here I am actually able to make customized update or insert or delete. तो आप कुछ भी यहाँ पे खुद अपना मैसेज भी दे सकते थे, कोड ये था. So हम यहाँ पे खुद अपना कुछ और मैसेज भी ऐड कर सकते थे, और इस तरह से you can do lot of stuff here based on your requirement. So this is the point. So again, let's go back. तो अब हम क्या करना चाहते हैं इस टेबल में कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर हम एक ऑडिट टेबल, बैकअप टेबल बनाना चाहते हैं. तो जब भी मैं इस एम्प्लॉय टेबल के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट करूंगा, तो इस एम्प्लॉय टेबल में मुझे उसका ई नंबर भी स्टोर करना है, किस एम्प्लॉय के ऊपर आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया है, नेम ऑफ ऑपरेशन स्टोर करना है, और डेट ऑफ ऑपरेशन स्टोर करना है. नेम तो आपको पता चल जाएगा इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या कर रहे हो, डेट सिस्टम डेट से मिल जाएगी, और ई नंबर भी आपको चाहिए कि आपने जिसके ऊपर इंसर्ट किया है या अपडेट किया है उसका ई नंबर क्या है. तो मुझे बताइए इसके लिए किस टाइप का ट्रिगर लगाना है. Before row level. हाँ, तो इसमें हमें आफ्टर भी लगा सकते हैं. तो कई बार आप देखते हैं कि जो काम बिफोर कर रहा है वो काम आफ्टर भी कर सकता है. दोनों काफी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें रोकना नहीं है, इंसर्ट अपडेट तो करनी है. तो इसलिए बिफोर लगाने की बजाय आप आफ्टर करेंगे तो बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू परफॉर्म इंसर्ट अपडेट डिलीट, एंड दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा व्हिच वी वांट कि उसके साथ इसमें एंट्री करनी है. तो आफ्टर लगाएंगे, और रो लेवल लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें ई नेम ई नंबर स्टोर करना है. तो अगर वो 10 एम्प्लॉय के ऊपर काम करेगा तो मुझे 10 के 10 ई नंबर इसमें स्टोर करने हैं. अगर 5 ई नंबर अपडेट होते हैं तो 5 ई नंबर स्टोर करने हैं ऑडिट टेबल में. सो हियर आई हैव टू गेट द रिकॉर्ड फॉर ईच रो, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रो लेवल. लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये दो चीजें स्टोर करनी होती, नेम और डेट, तो रो लेवल लगाता है, स्टेटमेंट लेवल लगाता. Row level. ना, अगर सिर्फ डेट ऑफ ऑपरेशन और नेम ऑफ ऑपरेशन करना होता तो फिर तो Statement आप level. स्टेटमेंट लेवल पे काम कर लेते ना, क्योंकि वो तो हर स्टेटमेंट के लिए इंसर्ट ही रहेगा, डेट डेट ही रहेगी. लेकिन यहाँ ई नंबर भी चाहिए था, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे रो लेवल लगाना है. रो लेवल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ई नंबर चाहिए. अगर 10 रोज हैं तो 10 के 10 के ई मुझे चाहिए. सो टाइप ऑफ ट्रिगर इज आफ्टर एंड फॉर ईच रो. एंड एक्शन, तो एक्शन क्या करेंगे, जब भी वो इंसर्ट अपडेट डिलीट करेगा मुझे ऑडिट टेबल में एंट्री करनी है. सो कैन यू राइट द एक्शन. एक्शन में कौन सी स्टेटमेंट होगी, चलो इतना ही बता दो. तो एक्शन में क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में.
अब आप बताना चाहिए आपको इस बार, जब भी ये सिचुएशन हो तो इस टेबल में रिकॉर्ड जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए फिर एक्शन में, क्या होना चाहिए? इंसर्ट। हाँ बस सिंपल है। तो एक्शन में आपको इंसर्ट करना है, किसमें? एम्प्लॉय ऑडिट टेबल में। और वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी? वैल्यूज नेम ऑफ ऑपरेशन आपको पता है, इंसर्ट अपडेट, ये सिस्टम डेट से मिल जाएगा। और ये ई नंबर कैसे मिलेगा? ये ई नंबर कैसे मिलेगा? कॉलन न्यू। हाँ कॉलन न्यू डॉट वेरी गुड, सियाने हो गए हम तुसी। तो यस वी विल गेट ई नंबर एज कॉलन न्यू डॉट ई नंबर। और इसमें ये एक है कि ये जो ट्रिगर है ये इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों के लिए फायर होगा। सो वी हैव सम कीवर्ड टू चेक दैट कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। तो ट्रिगर तीनों के लिए फायर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका डिटेल लिखा है। सो आई होप दैट दिस गिव यू ए बेटर आइडिया। सो इसमें हमारे पास एक कीवर्ड है इंसर्टिंग। तो ये कंडीशन ट्रू होती है जब ट्रिगर इंसर्ट के कारण फायर होता है। अपडेटिंग कंडीशन ट्रू होगी, ये कीवर्ड है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है जब ट्रिगर अपडेट के कारण फायर होता है। और डिलीटिंग ट्रिगर फायर होता है, कीवर्ड ट्रू रिटर्न करता है जब आप डिलीट के कारण ट्रिगर फायर करते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ट्रिगर इंसर्ट के कारण है या अपडेट के कारण है या डिलीट के कारण है। तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें देखिए इंसर्ट और सिस्टम डेट तो ऐसे मिल जाएगी मुझे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि इंसर्ट में न्यू से मिलेगा, अपडेट में न्यू से मिलेगा, बट यस डिलीट में मुझे ओल्ड से मिलेगा। तो डिलीट में मैं ओल्ड ई नंबर यूज करूंगा क्योंकि न्यू ई नंबर तो नल होगा, तो इसलिए पुराना ई नंबर जो है जिसके ऊपर हमने डिलीशन किया है। तो इफ यू सी द फुल कोड, द कोड इज लाइक दिस, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों के लिए चाहिए, तो इसलिए आफ्टर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन टेबल नेम फॉर ईच रो बिगिन इफ इंसर्टिंग। अगर ये इंसर्ट के कारण है, क्योंकि ऊपर तीनों के कारण ट्रिगर फायर हो रहा है ना, हमने तीनों के कारण ट्रिगर फायर किया है। सो यहाँ चेक कर रहा हूँ, इफ इंसर्टिंग देन इंसर्ट इनटू दिस ऑडिट टेबल में, एल्स इफ अपडेटिंग है तो ये, एल्स इफ डिलीटिंग है तो ये, और एंड इफ और एंड। सो दिस इज द कोड and it will create a duplicate copy for my employee audit table। तो पहले टेबल बना होना चाहिए क्योंकि तभी ये इंसर्ट करेगा ऑडिट टेबल। तो आप पहले एक एम्प्लॉय ऑडिट टेबल डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो भी आप मेन टेबल पे ऑपरेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड होते जाएंगे आपके बैकअप टेबल में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ मैंने लिखा है कि सेम फंक्शनैलिटी कैन बी अचीव थ्रू बिफोर ऑल्सो। जैसे आपने मुझे बोला कि कुछ नहीं कि हम बिफोर लगा सकते हैं, तो वो भी ठीक है, सेम काम आप बिफोर से भी कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए पहले मुझे ये एम्प्लॉय ऑडिट टेबल क्रिएट करना है और देन यू कैन एग्जीक्यूट दिस कोड। और इस कोड को एग्जीक्यूट करके आप देखेंगे कि जो भी आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट टेबल में आपकी ये वैल्यू आती जाएगी, एम्प्लॉय नंबर, इंसर्ट और आपकी सिस डेट। तो ये लॉग फाइल एक तरह से बनती जाएगी और उस लॉग फाइल में ये बता देगा कि आपने कौन सी जो चीज़ है वो स्टोर की है। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनीथिंग। So this is the concept of old and new, and you can well appreciate that कि yes we can do wonderful things by just accessing these old or new values. Now this is the last concept which is important for trigger, and as you can see that this heading indicate that raising application error with trigger। तो trigger के पास ये पावर है कि वो एक एरर भी रेज कर सकता है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि अब एरर रेज करने की क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे? क्यों ट्रिगर को कुछ एरर रेज करने की जरूरत पड़ रही है? ट्रिगर एक ऐसा एरर रेज कर सकता है जिसके कारण उसकी एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना हो। तो वो एरर कैसे रेज करना है वो मैं अभी बताऊंगा, बट पहले ये बताओ कि ये वाला फंडा कहाँ काम आएगा कि ट्रिगर एक ऐसा एरर रेज कर रहे कि जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो चले ही ना। ये कब चाहिए हमें? एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शन में तो चलो चाहिए होगी, एक्सेप्शन से तो वो हैंडल हो सकती है, लेकिन ट्रिगर की जब मैंने एप्लीकेशन बताई थी, ट्रिगर की जब मैंने एग्जांपल्स बताई थी, तो ट्रिगर की संडे वाली एग्जांपल। संडे वाली एग्जांपल, यस।
तो हमने ये डिस्कस किया था कि इंसर्ट स्टेटमेंट बंदा फायर करेगा और वो ट्रिगर क्या चेक करेगा, चेक सो ये ट्रिगर जो है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर चेक करेगा कि आज संडे तो नहीं है, और इफ संडे, तो वो क्या करेगा, एक एरर रेज करेगा जिससे ये वाली इंसर्ट स्टेटमेंट चल ही नहीं पाएगी। तो उसको सिर्फ मैसेज नहीं डिस्प्ले करवाना। अब अभी तक तो डीबीएमएस आउटपुट से मैसेज डिस्प्ले होता था, मैसेज जो है वो रोकेगा नहीं, तो मैसेज से बात नहीं बनेगी। अब मुझे एक ओरेकल का एरर रेज करवाना है जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट को रोक ही दे, मतलब उसको चलने ही ना दे, और बोल देगा कि टुडे संडे यू कांट अपडेट दिस एंड दिस। सो दिस यस, तो इस तरह की केसेस के लिए जहां आप चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉय नंबर 10 का डेटा अपडेट ही ना हो या संडे को कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म ना हो, उस तरह के केसेस के लिए जब आप पेरेंट कमांड को रोकना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास रेज एप्लीकेशन एरर का फंडा है। सो यस, आपने बिल्कुल ठीक हो जाना। तो आप एग्जांपल समझ सकते हैं, वही बात कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय टेबल पे संडे में कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, तो इस तरह का काम करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, तो इसके लिए मुझे सिस्टम का एरर रेज करवाना पड़ेगा। तो मैं पहले बिना एरर के लिख रहा हूँ, तो इसके लिए किस टाइप का ट्रिगर लगाना है? नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन संडे, रो लेवल, स्टेटमेंट लेवल, बिफोर स्टेटमेंट लेवल। सही है, बिफोर लगाएंगे और ये स्टेटमेंट लेवल लगेगा। और सबसे पहले चेक करेंगे कि संडे है या नहीं है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डे का, इसके बिना भी चला सकते थे काम, लेकिन लेट्स हैव ए वेरिएबल आल्सो। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डेट में से डे निकाल रहा हूँ टू कैर फंक्शन से, उसको अपर कर रहा हूँ और उसको ट्रिम भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो वेंडर्स डे है वो 9 अल्फ़ाबेट का होता है, फ्राइडे 6 का होता है, तो जितने भी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको ट्रिम भी कर रहे हैं हम, और वो जो भी नेम है वो डे में स्टोर कर रहे हैं। एंड उसके बाद कंपेयर कर रहा हूँ, इफ डे इक्वल टू संडे देन डू दिस। तो इफ डे इक्वल टू संडे देन डू दिस, तो मैसेज तो आ जाएगा नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन संडे, बट दिस कोड इज डूइंग नथिंग टू स्टॉप इंसर्ट अपडेट डिलीट। ट्राई टू फॉलो द पॉइंट। तो मैंने लॉजिक बना दिया है, लेकिन इस लॉजिक में प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे स्टेटमेंट रुके ना। मैसेज तो दे देगा कि भाई संडे को कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इंसर्ट रुक जाए या जिससे अपडेट रुक जाए या जिससे डिलीट रुक जाए। उसने सिर्फ एक मैसेज ही ऐड किया है। यू फॉलो दैट ना? तो हमने सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, बट मैसेज डिस्प्ले से तो बात नहीं बनेगी, काम तो फिर भी वो कर गया, बंदा इंसर्ट तो कर ही गया। तो उस इंसर्ट को रोकना था। तो रोकने के लिए मुझे यहाँ पे तो रोकने के लिए मुझे यहाँ पे रोकने के लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है, रेज एप्लीकेशन एरर। तो इस रेज एप्लीकेशन एरर में दो चीजें पास करते हैं, एरर नंबर और मैसेज। तो यहाँ पे आप खुद का एरर नंबर स्पेसिफाई करते हैं, हमें उन्होंने रेंज दी है कि आप कोई भी एरर नंबर, आपने देखा होगा ओरेकल के सारे एरर नंबर नेगेटिव में होते हैं, तो ये भी एक तरह से ओरेकल का एरर यूजर को लगेगा, तो यूजर समझ ही नहीं पाएगा कि ये ओरेकल का एरर है या हमने कुछ ट्रिक प्ले किया है। तो हम जानबूझ के एक ओरेकल का एरर नंबर की रेंज यूज कर रहे हैं। सो उन्होंने हमें रेंज दी है यूजर डिफाइंड एरर के लिए कि आप -20,000 में से -20,999 तक अपना कोई भी एरर दे सकते हैं। और साथ में मैसेज भी आप दे सकते हैं। एरर का मैसेज भी होता था ना कि टू मैनी रोज है, नो डेटा फाउंड है, तो वैसे हम भी अपना मैसेज दे सकते हैं जिसकी साइज 2048 बाइट तक हो सकती है। तो मुझे अपना अप्रोप्रिएट मैसेज क्रिएट करना है इफ कंडीशन इज ट्रू। सो इस एरर के कारण कॉरेस्पॉन्डिंग इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी स्टेटमेंट है वो रुक जाएगी। तो अब हम पूरा कोड देखते हैं। सो बिफोर इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट लेवल लगाया, डे मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ये समझ लग गया ना डे कैसे निकाला है। तो आई होप दैट यू नो दैट कि डे में से सिस्टम डेट निकाल लिया, सिस्टम डे में से डे निकाला, टू कार ने करेक्टर इन्फॉर्मेशन दी और ट्रिम से हमने ब्लैंक स्पेस रिमूव की। इफ डे इक्वल टू दिस रेज एप्लीकेशन एरर, तो रेज एप्लीकेशन एरर दोनों काम कर देगा, एरर नंबर भी रेज करेगा और मैसेज भी दे देगा कि भाई आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते संडे को। करके देखते हैं। आज कौन सा डे है? बोलो, आज कड़ा दिन है? ट्यूसडे। ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के लिए लिख लेंगे हम ना। तो ये वाला हुआ कोड हमारा।
एम्प्लॉय टेबल हमने बनाया ही हुआ है और इसकी स्टेटमेंट एक निकाल लेते हैं। ये वाला ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट और अपडेट। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये दो काम करेंगे हम। एम्प्लॉय दिस डे आ गया, संडे, DBMS output, no operation can be performed on Tuesday कर देंगे। अभी संडे के लिए चलाता हूँ, फिर ट्यूसडे के लिए करेंगे। तो पहले ये ट्रिगर बनाता हूँ, एम्प्लॉय संडे नाम है इसका, मैसेज हमने वैसे वो दे दिया है। सो लेट्स रन इट। This date, day, trim this, equal to Sunday, then this. सर डे वाले में एक ब्रैकेट कम लगा है। Thank you. थैंक यू। तो ये हमने ट्रिगर लिख लिया। अभी हमने संडे के लिए लिखा हुआ है। तो अब मैं इस अपडेट स्टेटमेंट को फायर करता हूँ। तो ये अपडेट हो गई रो, 1 रो अपडेटेड। लेकिन अब अगर मैं इसको ट्यूसडे कर देता हूँ, अब रन करता हूँ, तो इसीलिए आप देखते हैं और रिप्लेस का फंडा है। तो और रिप्लेस मतलब ट्रिगर तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये उसको जस्ट अपडेट कर देगा। तो और रिप्लेस नहीं लिखेंगे तो फिर वो एरर दे देगा, ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसलिए अब ट्रिगर रिप्लेस हो गया, ट्रिगर अपडेट हो गया। और अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। सो यू सी नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे दिस। सो ये हमारा वही एरर नंबर है जो हमने दिया है और ये हमारा ही एरर मैसेज है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग एंड वी हैव अचीव्ड आवर डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव जो हम चाहते थे। So yes, so this is quite useful. So we can do this for all the banking applications commonly use this kind of system. तो आप इसको और बेटर सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं कि अगर ये वाला यूजर है तो वो ना कर सके, बाकी अगर कोई एडमिन टाइप का यूजर करना चाहता है तो वो कर सके। तो इस तरह से आप मल्टीपल इफ कंडीशन के साथ इसको और बेटर कर सकते हैं। इवन यू कैन ऐड टाइमिंग डिटेल ऑल्सो, कि भाई जो है वो टाइम रात को 12 बजे के बाद ना कुछ हो। तो इस तरह से आप इसको और बेटर कोड को लिख सकते हैं। So yes, so we have now reached at a point where we can implement this code जो शुरू में बात कर रहे थे कि हम एक प्राइमरी की के लिए खुद ट्रिगर बनाना चाहते हैं। तो प्राइमरी की का ट्रिगर एक्चुअली ओरेकल बनाती है ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली, लेकिन अब हम खुद ट्रिगर लिखना चाहते हैं प्राइमरी की का अपने आप। तो अब हम प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगाएंगे नहीं, प्राइमरी की अचीव करेंगे ट्रिगर के साथ। तो टेबल बनाते समय आई विल नॉट मेंशन दैट ई नंबर इज प्राइमरी की, बट आई वांट टू अचीव सेम फंक्शनैलिटी बाय राइटिंग माय ओन ट्रिगर। सो दिस इज पॉसिबल एंड फॉर दिस अगर मुझे प्राइमरी की का ट्रिगर लगाना है तो मुझे बताइए कि वो रो लेवल होगा या स्टेटमेंट लेवल होगा, और बिफोर होगा या आफ्टर होगा, बताओ। रो लेवल बिफोर। वेरी गुड। व्हाट इज योर गुड नेम? इशित बजाज। इशित बजाज, वही है। समय फंडे समय लग गए तुझे सारे।
सो यस, हम रो लेवल स्टेटमेंट लेवल लगाएंगे, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो टाइप ऑफ ट्रिगर इज बिफोर एंड दिस इज फॉर रो लेवल, और ये इंसर्ट या अपडेट के ऊपर लगाएंगे। तो एक्शन क्या होना चाहिए, क्या चीज चेक करनी चाहिए? नॉट नल यूनिक। तो नॉट नल कैसे चेक करोगे कि ई नंबर में नल तो नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? ई नंबर इज नॉट इक्वल टू इज नल आएगा। ई नंबर सीधा लिखोगे या उसके साथ कुछ न्यू ओल्ड लगाना पड़ेगा? कोलन कोलन करके। So yes, we have to use, so let's suppose we issue this, तो प्राइमरी की एक तो नल नहीं होनी चाहिए, तो yes we have a simple logic, if colon new dot e number is null, तो then हम उसको रोक देंगे। रोकोगे कैसे? मैसेज डिस्प्ले कराओगे या Error कोई raise। एरर? वेरी गुड, तो आप एरर इरेज करा दोगे, रेज एप्लीकेशन एरर, हमने अभी पढ़ा है। सो यस, वी अचीव्ड दिस फर्स्ट कंडीशन फॉर नल चेकिंग की। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो टेबल में जाएगा और वो चेक करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब वो क्या है दूसरी कंडीशन कि यहाँ से वो ई नंबर उठाए और इंप टेबल पे क्वेरी मारे, और उस क्वेरी के रिजल्ट की बेसिस के ऊपर अगर ये क्वेरी कुछ रिकॉर्ड यस रिटर्न करती है तो मैं एरर रेज कर दूं कि भाई ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड, अगर वो रिटर्न यस है, और अगर वो रिटर्न नो है तो मैं अलाउ कर दूंगा। यही लॉजिक है ना? तो मैं क्वेरी करूंगा किसके लिए, वेयर ई नंबर इज इक्वल टू कॉलन न्यू डॉट ई नंबर, उस ई नंबर को सर्च करूंगा फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय where e number equal to this, got it, from employee where e number equal to colon new e number, अगर उसको मिल जाता है तो एरर रेज करेगा और अगर नहीं मिलेगा तो अलाउ करूंगा। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है। सो इट शुड बी यूनिक, उसके लिए हमें कुछ सोचना है। तो वी हैव टू क्वेरी द एम्प्लॉय टेबल to check the presence of record for colon e new number. So if it exists, then we raise the error. Otherwise, we will do nothing. So this is the logic which we want to achieve. So we have to further give a thought कि ये query कैसे लिखेंगे। Select into से लिखनी पड़ेगी और उसके थ्रू हमें कुछ कोड बनाना पड़ेगा। ठीक, लिखें, देखें सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन चेक करने से पहले select into की स्टेटमेंट लिख सकते हो, चैट बॉक्स यूज करके लिखो यार select into की स्टेटमेंट क्या है। ये कंडीशन कैसे चेक करते हैं ये थोड़ा सोच लेते हैं, फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। लेट्स गिव ए थॉट ओवर दिस, हाउ टू डू दिस। तो सोचिए जरा 1 मिनट के लिए और चैट बॉक्स यूज कीजिए। तो कोई अनम्यूट करके बता दो, टाइप नहीं करना तो। यस प्लीज, कुछ तो बताओ। कुछ आया मैसेज, select into this, yeah, so select ename, you can send the message to all so that we can discuss. Select e number into this from employee where this, तो अगर select into statement जो है हम select into यूज करेंगे, तो अगर select into statement ने कोई रिकॉर्ड ना रिटर्न किया तो क्या होता है? हम यहाँ देख रहे थे ना कि अगर उसने कोई रिकॉर्ड नहीं रिटर्न किया तो नल आएगा, तो कोई रिकॉर्ड वो रिटर्न नहीं करती तो क्या हो जाता है?
नल जी, सेव हो जाता है, तो सब नल सेव हो जाते हैं। वो एक्सेप्शन रेज हो जाती है, तो इसको देखते हैं चलो कोड को. सो आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर प्राइमरी की बिफोर इंसर्ट अपडेट ऑन एम्प्लॉय फॉर ईच रो. डिक्लेयर, एक मैंने रो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है बिगिन. सो पहले तो नल चेक कर लिया. सो आई होप दैट यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी. अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज अनम्यूट करके आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना. So select star into REC from employee where new number equal to this. तो ये क्वेरी हमने लिख दी. अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसको रिकॉर्ड मिल गया तो क्या करना है. अगर इसको इसका रिकॉर्ड Error मिल गया तो क्या करना है. हाँ सर बोलो. एरर रेज कर रहे हैं, एरर रेज एरर रेज करना है, कर तो आपने एरर रेज कर दिया. लेकिन अगर इसको रिकॉर्ड नहीं मिला तो क्या होगा. अगर उसको इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो याद है क्या होगा. अगर इस स्टेटमेंट ने कोई रिकॉर्ड रिटर्न ना किया तो क्या होगा. सर एक्सेप्शन आ जाएगा। सो वो नो वाली जो कंडीशन है वो एक्सेप्शन में जाके कैप्चर होगी. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल कि अगर तो एक आपको याद होगा सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैन ऑलवेज रिटर्न वन रिकॉर्ड. सो अगर तो एक रिकॉर्ड मिल गया तो वो रेज एप्लीकेशन एरर कर देगी. लेकिन अगर उसको कोई रिकॉर्ड ना मिला तो नो डेटा फाउंड का एरर आ जाएगा. तो इसलिए एक्सेप्शन लिखनी जरूरी है. व्हेन नो डेटा फाउंड देन. तो अगर उसको कोई वो नो वाली कंडीशन यहाँ आएगी. सो व्हेन नो डेटा फाउंड देन do nothing and if. So this is the point. So ये if condition से नहीं होना था, ये exception से होना था. तो अगर इसके कारण रिकॉर्ड मिल गया तो ये वाली चल जाएगी, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये एक्सेप्शन रेज कर देगा नो डेटा फाउंड की. और उसमें मैंने लिख दिया है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो और एंड. तो इंसर्ट चल जाएगी. और अगर उसको रिकॉर्ड मिल गया तो ये उसको पकड़ के बैठ जाएगा और उसको बोल देगा कि आप नहीं कर सकते. So this is the case. Let's execute it. क्लियर हो गया कोड. कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, तो कॉपी करता हूँ. मेरे ख्याल से हमने जो कोड लिखा है एम्प्लॉय का टेबल बनाते समय, सो आप देखते हैं कि जब मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया उसमें ई नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट. लेकिन अब हम ई नंबर के ऊपर प्राइमरी की वाले एक्शन सारे करेंगे. तो ई नंबर वाले जो एक्शन है वो सारे करेंगे सो दैट यू कैन सी दैट कि हम प्राइमरी की के करेक्टरिस्टिक्स अचीव कर पाते हैं विदाउट राइटिंग एनी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. सो ये था ट्रिगर. ई नंबर ही है और ये मुझे चेंज करने पड़ेंगे. So let's quickly update it. Yeah. So trigger create हो गया है और अब मैं यहाँ null देता हूँ सबसे पहले. अगर मैं null देता हूँ insert में, execute करता हूँ. So yes, you can see that no operation. ओहो, Tuesday वाला भी तो लगा हुआ था. तो अब ये ट्यूसडे वाला ट्रिगर लगा हुआ है और ये ट्यूसडे को कुछ करने नहीं देगा. हमने देखा ना, मुझे एरर आ गया, नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस. तो मुझे इस ट्रिगर को, ये ट्रिगर कौन सा है, imp अंडरस्कोर संडे के नाम से बनाया था. तो इस ट्रिगर को मुझे वो करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा. तो हमारे पास एक सिंटेक्स है ड्रॉप ट्रिगर imp संडे. तो इस ट्रिगर को ड्रॉप कर देता हूं सो दैट कि ये उसमें हिंड्रेंस ना डाले. ट्रिगर ड्रॉप हुआ. अब मैं ये करता हूं. सो यस, नाउ वी गॉट द रिजल्ट. प्राइमरी की वायलेशन. सो ये प्राइमरी की वायलेशन हो गई. ये एरर नंबर मेरा है और ये मैसेज भी मेरा है. तो हमने प्राइमरी की का एक्शन अचीव कर लिया है और अब मैं कभी भी ई नंबर को नल नहीं दे सकता. बाकियों में नल अलाउड है बट ई नंबर में नल नहीं अलाउड है. और अगर मैं यहाँ 1 दूंगा, यहाँ 2 देता हूँ तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 का रिकॉर्ड ऑलरेडी था. सो यू कैन सी रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड. दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ. सो यस, यू गॉट एन एरर कि it should be unique and this is the another error number which we have given to this
So yes, this is wonderful that we have achieved the same task of primary key by writing our own trigger. तो मैं शुरू से आपको बता रहा था कि प्राइमरी की के लिए Oracle इनबिल्ट ट्रिगर बनाती है, लेकिन आज हमने बना के खुद देख लिया कि yes, we can create our own trigger for primary key. And this is its simple code, and this is very interesting that yes, इससे इसके बाद आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि yes, you now start appreciating that कि Oracle वालों ने कैसे काम किया होगा और किस वे से सारी चीजों को किया. And with this you actually got a confidence that you have a lot of control over your data set. अब आपके पास डेटाबेस में काफी कंट्रोल मिल जाता है आपको कि जो भी आप चाहते हैं, जिसको अलाउ करना है, जिसको रोकना है. सो एज ए प्रोग्रामर यू कैन इन्फोर्स लॉट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. तो मैंने आपको बताया था ना, वी हैव कॉम्प्लेक्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. तो जो कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो हम सब कुछ इसमें लगा सकते हैं. कोई रेंज देना चाहते हो कि भाई इसी अभी तक तो हमारे पास ई नंबर की कोई रेंज नहीं होती थी, तो हम यहाँ रेंज दे सकते हैं कि ई नंबर इज ओनली अलाउड बिटवीन दिस एंड दिस. सिर्फ इसी टाइम पे इंसर्शन हो सकते हैं. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल बाय यूजिंग दिस ट्रिगर. So yes, we have another assignment. So this is the case जहां मैं ये चाहता हूं कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि बंदा सिर्फ ये 4 वैल्यू इंसर्ट करेगा और ये 2 नल होंगे और यूजर ऑटोमेटिकली प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग कैलकुलेट करेगा प्रोग्राम और वो वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो जाएंगी. सो दिस इज द गाइडलाइन. तो मैं ये इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा. आई वांट दैट यू शुड प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, बट ऑफ कोर्स द सोल्यूशन इज अवेलेबल in the videos also, so you can watch that video if you are not able to solve it. But still I want that you should try to solve it on your own. Similarly, we have one more this yeah, so we have one more assignment for this foreign key. तो प्राइमरी की के लिए लगाया है, तो फॉरेन की के लिए भी ट्रिगर लिख सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय में है वो पहले इस डिपार्टमेंट टेबल में होना चाहिए और अगर है तभी अलाउड है, अदरवाइज वो एरर रेज करेगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट आफ्टर दिस क्लास सिट टुगेदर फॉर फ्यू मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस फॉरेन की ट्रिगर ऑन योर ओन. एंड चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं. फॉरेन की का कोड लिखोगे, फॉरेन की का ट्रिगर बनाने का, फिर बाइंड अप करेंगे क्लास को, फिर आप रह ही जाएगा ये. तो ये मैं प्राइमरी की का आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इसको रेफर करते हुए फॉरेन की को सॉल्व करने की कोशिश करो. सो दिस इज द कोड फॉर प्राइमरी की, बट नाउ वी हैव टू राइट द कोड फॉर फॉरेन की. फॉरेन की में डिपार्टमेंट नंबर पे सब कुछ करना है और आप यहाँ चेक करोगे कि जो डिपार्टमेंट नंबर मैंने यहाँ दिया है वो डिपार्टमेंट टेबल में अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो एरर रेज करना है. सो जस्ट गिव ए थॉट एंड ट्राई टू क्विकली राइट ए कोड. चलो मैं एक और आसान काम कर देता हूँ आपके लिए. मैं ये कोड आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ सो दैट यू कैन एडिट इट. कहाँ है चैट? सो दिस इज विद एवरीवन. तो ये मैंने कोड यहाँ कॉपी कर दिया. कोड आप अब अपने नोटपैड में ले जाइए और इसके साथ प्ले कीजिए और इसको फॉरेन की के लिए कन्वर्ट कर दीजिए. करोगे? हाँ ना तो बोलो बोलो. बोलते नहीं कुछ. Yes, sir. So just do this for 2 minutes. So we will discuss the solution after 2-3 minutes. You can discuss with each other if you want. So I'm going for 2-3 minutes and then I will come back. So within that time, try to solve it.
So yes, anybody want to share your solution? किसी ने किया कुछ? Yes, please. Anybody? बनाया कुछ किसी ने? हाँ ना तो बोला करो। खैर so let's quickly discuss the code. So हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट नंबर। स्टार भी कर सकते थे लेकिन मैंने कॉलम ही निकाला है। सो अगर तो कोई रिकॉर्ड उसका नहीं मिलता, डिपार्टमेंट नंबर पे क्वेरी मार रहे हैं, तो अगर तो रिकॉर्ड मिल जाता है तो नल है, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी नो डेटा फाउंड की, और इसमें फिर हम रेज एप्लीकेशन एरर कर देंगे। So you can see that if this select to statement return no record, it mean that कि मतलब मास्टर टेबल में उसका रिकॉर्ड नहीं है, बट इस कंडीशन को कैप्चर करने के लिए नो डाटा फाउंड रेज होगा, और इस नो डाटा फाउंड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि फॉरेन की वायलेट हो रही है, और अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो नल यहाँ पे आएगा, और अगर नहीं मिलता सो एक तरह से ये इफ यस है और एक तरह से ये नो वाली कंडीशन है। If you have any doubt in this solution, you can ask me anything. तो आज के लिए इतना ही है। With this, we have completed the all topics of triggers. So yes, I request you to implement it and to read relevant material. So with this, we have completed the whole syllabus for database management system.